بھائی آپ کس شہر سے کس گاؤں سے ہیں اور آپ کے گاؤں شہر کی خوبی کیا ہے؟ میں پاک پتن سے ہوں۔ پاک پتن شریف تو سر بابا جی کا شہر۔ دوست آپ رکشہ چلاتے ہیں؟ جی سر، آپ کہاں سے ہیں؟ کاڑے اکاڑے سے۔ یہ دوستو یہ میرے اکاڑا شہر سے ہیں۔ سرکار آپ کہاں کس شہر سے ہیں؟ میں بیسیکلی لاہور میں اب پہلے بورے والا تھا۔ بورے والا، ان کا تعلق بورے والا سے ہے۔ سر آپ کا تعلق کس گاؤں یا کس شہر سے ہے؟ لاہور سے۔ پکا لہوریا؟ ہاں جی۔ ہاں جی وہ لہوریا ہے جی۔ اچھا دوستو یہ رکشہ چلاتے ہیں۔ بھائی آپ کا تعلق کس گاؤں یا شہر سے ہے؟ میاں چنو کھانے وال سے۔ میاں چنو کھانے وال، خانے وال۔ آپ کے خانے وال کی کوئی خوبی؟ ہمارے کھانے وال میاں چنو کی خوبی ہے، ادھر کی جو مٹھائی ہے نا وہ بہت مشہور ہے۔ ہاں تھینک یو تھینک یو۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ ہاں دوستو جب میں نے یہ سٹی آف لو ٹرکی سے واپس آنے کے بعد پہلی بار لاہور کو کہا تھا اور میں نے وہ ویڈیو پوسٹ کی تھی، تو جہاں 80% لوگوں نے لاہور کی اور لاہوریوں کی تعریف کی، وہاں 20% نے انگلیاں بھی اٹھائیں، اعتراض کیے۔ اور میں خیر وہ میسیجز تو نہیں دہرا سکتا، وہ ان کے الفاظ تھے، لیکن انہوں نے اچھا نہیں جانا۔ ان اعتراضات میں سے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ تھا جی کہ لاہوری راستہ صحیح نہیں بتاتے۔ دوستو حضرت انسان کی ایک فطرت ہے، اگر اس کو صحیح راستہ پتہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی کو غلط راستہ بتا دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تمام سننے والوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کس طرف ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آ کے آپ سے پوچھے کہ گجرانوالہ کہاں ہے اور وہ آپ کو اکاڑا کی طرف بھیج دے، ملتان روڈ پہ۔ امپاسبل۔ انسانی فطرت یہ ہے، جس چیز میں اس کا کوئی لاس نہ ہو رہا ہو، اس کو کوئی خوف نہ ہو، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو لاہور میں یہ کہنا کہ لاہوری راستہ صحیح نہیں بتاتے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ ہم تو وہ لاہوری ہیں جو ہم مطلب کئی بار میں نے کیا کہ میں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں کہ ہاں جی یہ والی ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، یہ سامنے ہے جی آپ کا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ لاہوری لفٹ نہیں دیتے۔ پہلی تو بات یہ کہ آپ نے روڈ کے اوپر آ کے، آپ کسی اور شہر یا گاؤں سے ہیں، آپ نے آ کے گاڑی کو ہاتھ دیا ہے اور گاڑی والے نے گاڑی نہیں روکی، تو آپ کو کیسے پتہ لگ گیا جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس کی رجسٹریشن کے اوپر لاہور لکھا ہوا تھا یا اس کے آئی ڈی کارڈ پہ لاہور لکھا ہوا تھا؟ آپ تو نہیں کہہ سکتے وہ کون تھا۔ ہو سکتا ہے وہ صرف لاہور سے گزر رہا ہو، یا وہ ان میں سے ہو جو لوگ لاہور میں آ کے رہتے تو ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لیکن وہ لاہوریے نہیں ہوتے۔ دوسری بڑی اہم بات ہے دوستو، ہم نے پچھلے 20 سال کے اندر جتنی لاشیں اٹھائی ہیں اور جو دہشت گردی کا دور رہا، اور اس کے بعد کچھ ایسی وارداتیں بھی ہیں جس میں لوگوں نے لفٹ کے بہانے کار والے کو لوٹ لیا، یا ایسا بھی ہوا کہ خواتین نے لفٹ مانگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پستول نکال لی۔ تو جس شہر کے اندر اس طرح کے نامساعد حالات سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہوں، وہاں لفٹ دینا بالکل حماقت ہے۔ اور میں بھی بہت بوڑھے لوگوں کو لفٹ دیتا ہوں، جو خواتین یا مرد بہت بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، اور مجھے لگے کہ یہ چل نہیں پا سکتے تو میں ان کو لفٹ دیتا ہوں۔ تیسری بات جو کہی گئی جی کہ لاہوری صلح مارتے ہیں، لاہوری صلح کھلاتے کچھ نہیں ہیں۔ دوستو کبھی کوئی لاہوریا آپ کو صلح مارے تو اس کو ہاں کر کے دیکھیے گا وہ آپ کو لنگر پانی کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا۔ یہ ساری باتیں گھڑی بھی باتیں ہیں، بنائی بھی باتیں ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ لاہوری فراڈی ہوتے ہیں، تو بھائی آپ کے ساتھ جس نے فراڈ کیا پہلے پتہ تو کر لیں وہ لاہوریا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دوستو میں جس شہر میں رہتا ہوں، اس شہر کے اندر 70% لوگ وہ ہیں میرے عزیزو اقارب جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں یا کسی گاؤں سے آئے ہیں یا کسی اور صوبے سے آئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق میں آپ کو انشاءاللہ چند دن کے بعد جب عید کی چھٹیاں آئیں گی، چھوٹی عید کی، تو میں آپ کو لاہور کی سڑکیں دکھاؤں گا اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاہور میں کتنے وہ لوگ ہیں جو میرے عزیز و اقارب جو دوسرے شہروں اور دوسرے گاؤں سے آتے ہیں۔ یہ ایک صاحب آ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کا نام؟ میرا ذاکر خان۔ ذاکر خان۔ کیمرے پہ آج آئیں گے آپ؟ کس طرح؟ آنا پسند کریں گے کیمرے پہ؟ مجھے اردو نہیں آتا ہے۔ اچھا چلیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا شہر کون سا ہے اور اس کی ایک خوبی بتا دیں۔ میں ادھر لاہور میں ہوں۔ نہیں شہر کون سا ہے آپ کا پیچھے؟ میں ادھر پیدا ہوں، لاہور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ابا؟ وزیرستان کا پیدا ہے، لاہور میں گلبرگہ کا پیدا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور ڈیڈی آپ کے؟ کنافر۔ ڈیڈی آپ کے؟ کیا وہ ادھر ہے؟
वो भी इधर था, नहीं नहीं वो पिंड में पैदा हूँ। पिंड में पैदा हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने देखा कि अभी मैंने एक साहब से बात की, ये दो नौजवान हैं और मेरे साथ ये रोज़ वॉक करते हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर है। अकबर, मुझे अपने शहर या गांव का नाम भी बताइए और उसकी एक खूबी बताइए। मेरा गांव और शहर लाहौर ही है, मेरी जंपल यहाँ की। अच्छा, मैं यहाँ के हूँ, स्टार्ट से यहाँ से। और आपको पता है कि जिसे लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं। अच्छा, आपके डैडी भी यहाँ से हैं? जी जी, हम मतलब मेरे परदादा यहाँ से, हम पाकिस्तान बनने से पहले की लाहौर की। जी दोस्तों, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे खाना खिलाएं तो मुझे खाना खिलाएंगे आप? आपने खाना तो खा लें। लाहौरियों की तो आपको पता है कि कभी भी नहीं लाहौरी कहते कि ना, लाहौरी तो कहते हैं जितना मर्जी खाएं, लाहौर की शान है। अच्छा, अकबर ये कहा जाता है कि लाहौरी एड्रेस गलत बताते हैं। कभी भी नहीं बताते, जो पक्के लाहौरी होते हैं वो नहीं बताते। हाँ, जो इधर उधर से आए हुए अब लाहौरी जो हैं यहाँ पे कम से कम 30 to 40% लाहौरी हैं। बाकी तो बाहर से कोई इंडिया से आया है, कोई क्या लगे साथ शहर दूसरे से शहरों से आया, आया। साशा साहिवाल वगैरह, ये उकाड़ा, ये वो वगैरह, ये जगह से आया। वो लोग गलत बताते तो वो नाम खराब हो जाता कि लाहौर। 8-10 साल से रहने से ना लाहौरी नहीं बन जाता। जिसकी जंपल लाहौर की हो ना वो लाहौरी होता है। थैंक यू अकबर। दोस्तों हमारे पास एक और लड़का है, ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप सुनाएं सर? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? इरफान हसन। इरफान, अपने शहर का नाम भी बताइए और उसकी एक खूबी भी बताएं मुझे, अपने गांव या शहर का। सर मैं लोधरा से हूँ अच्छा। और मेरे गांव का नाम हसनाबाद है और उसकी खूबी ये है कि वहाँ के लोग बहुत लॉयल हैं और उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू लाहौरियों के बारे में कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन जब से मैं लाहौर आया हूँ और मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लाहौरी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे बेसिकली मैंने अपने पेरेंट्स से भी यही कहा है कि क्यों ना हम लाहौर ही सेटल हो जाएं, क्योंकि यहाँ के लोग हैं उनमें बहुत प्यार है, वो बहुत जल्द लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। थैंक यू, इनमें ये खूबी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देखा कि ये एक क्या पार्क में आए हुए थे और मैंने इनसे बात की। दोस्तों मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कट किए बगैर कुछ लाहौरियों से जो यहाँ लोग पार्क में मौजूद हैं मैं उनसे बात कर सकूँ, लेकिन दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहे और शायद कैमरे के आगे आकर लोग घबरा भी जाते हैं। जिस तरह भी एक साहब का एक्सेंट तो बिल्कुल पठानी था, लेकिन वो मुसिर थे इस बात पे कि नहीं मैं तो लाहौर दी जंपल हाँ। तो खैर ऐसा होता है, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं कोशिश करूँगा, ये 3 बच्चे आ रहे हैं, इनसे मैं बात करके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैमरे पे आएंगे? सिर्फ ये पूछना है कि आपका शहर कौन सा है और आपका या गांव कौन सा है और उसकी एक खूबी बताइए। आपका शहर कौन सा है और गांव कौन सा है, उसकी एक खूबी बताएं। हमारे शहर लाहौर है। अच्छा, ठीक है। और गांव पीछे से पीर महल है। पीर महल के रहने वाले हैं। पीर महल की खूबसूरत सी बात बताएं। पीर महल में सबसे ज़्यादा जो है ना आम बहुत मशहूर है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ ईशान है। हाफिज़ ईशान, पीर महल से। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम साद हैं? साद। अच्छा साद, आपका शहर पीछे से या गांव कौन सा और उसकी खूबी बताइए। मेरा शहर लाहौर ही है। अच्छा, और इधर के और डैडी? डैडी भी इधर के। अच्छा, ये लाहौरिया बच्चा है। शक्ल दिखाया जरा मेरे दोस्तों को। वे लाहौरिया साडा। दोस्तों आपने देखा कि मैंने अभी तक 3 लोगों से बात की है और उसके अंदर से 4 लोगों से बात की। 3 लोग जो हैं वो उनका ताल्लुक़ लाहौर से नहीं है, वो यहाँ रिहाइश पजीर हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। लाहौर किसी के बाप का नहीं है, जारादारी नहीं है। पूरा पाकिस्तान हमारा, हम सबका है, मेरे अजीज़ों क़ारिब का। जहाँ मर्जी जाएं रहें। सिर्फ बताने का और समझाने का मकसद ये था कि जो लोकल लाहौरिया है, जो यहाँ की जंपल होता है और यहाँ रह रहे होते हैं और उनको इलाकों का पता होता है और वो कभी गलत रास्ता नहीं बताते। हमने अकबर से भी बात की जो लाहौरिया है और एक साहब आ रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। सर मुझे 2 सवालों के जवाब देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद, आपका शहर या गांव कौन सा है और उसकी खूबी क्या है? शुरू से ही तकरीबन कोई 100-200 सालों से हमारा जो ख़ानदान है शुरू से लाहौर का रहने वाला। लाहौरिया मेरा भरा, चलो ये तो अच्छा हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि ये कहा जाता है कि लाहौरिये एड्रेस गलत बताते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है। लाहौर वाले तो अगर आप उनसे एड्रेस पूछे तो वो कोशिश करते हैं कि आपको घर तक छोड़ के आए। असल में हुआ ये है कि आपका जो है ना वो आप सुनिएगा ज़रा। हाँ जी जी। जो शहर है उसमें आपके जो ना अब
माइग्रेट करके जो है ना वो जो लोग आए हैं, जी शहरों से उसकी आए हैं। वजह से कन्फ्यूजन पैदा। तो वो कन्फ्यूजन उस वजह से पैदा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, इन्होंने मुझे भी सलाम किया, यकीनन ये मेरी वीडियोस देखते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद। अच्छा वहीद, क्या करते हैं आप? मैं मुलाजिम हूँ सरकारी माशाल्लाह, किस डिपार्टमेंट में? यूनिवर्सिटी। अरे वाह वाह वाह। मुझे ये बताइए कि आपका शहर या गांव कौन सा और उसकी खूबी क्या है? मैं बेसिकली पाकपतन से बिलोंग करता हूँ पाकपतन से। और उसकी खूबी ये है कि बाबा फरीद का मज़ार है वहाँ पे। आए मेरे बाबा फरीद सरकार का मज़ार, वाह वाह वाह। तो आप मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, वो क्या था? सलाम। अरे वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। सो नाइस। आपको एक बड़ा नोटी सा मैसेज आया होगा, आज फिर करूँगा, आप पहचान रहे कि मैं कौन हूँ। चलो कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखा आपने कि अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है उनमें आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि लाहौर में जिन लोगों से आप मिलते हैं या इंटरेक्शन करते हैं वो सारे लाहौरिये नहीं होते, लेकिन जब कोई फ्रॉड होता है उनके साथ या उनको गलत एड्रेस बताया जाए या कोई भी ज़्यादती हो, सारा इल्ज़ाम फिर शहरदारों पे, लाहौरियों के ऊपर धर दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ताल्लुक़ लाहौर से हो, फैसलाबाद से हो, इस्लामाबाद से हो, इस्लामाबाद को खैर नहीं, लेकिन पेशावर से हो, मुल्तान से हो, दोस्तों मैं फिर कहूँगा ये शहरदार बड़े गैरतमंद, बड़े गयूर और बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं। इनको अपनी अना का, अपने आने वाले मेहमानों का शहर में बड़ा ख्याल होता है। ये लोग अंसार तबीयत के होते हैं। शहर कभी भी बढ़े ना, फैले ना, अगर उसके शहरदार दूसरे शहरों या दूसरे गांव से आने वाले अजीज़ों अकारिब को रास्ता ना दें और उनके राह में अगर रोड़े अटकाएंगे, कोई भी शहर ना पनप सकता है, ना बढ़ सकता है, ना उस शहर के अंदर आबादी बढ़ सकती है। तो दोस्तों 5th जनरेशन वार जारी है, जो कि अब सोशल मीडिया पे लड़ी जानी है। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं जिससे मुनाफरत और नफ़रत फैलती है कौमों के अंदर। और मैं यहाँ आया हूँ दोस्तों, यहाँ कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात हो सकती जी? जी कैमरे में बात हो सकती है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, आपका शहर या गांव कौन सा है और उसकी खूबी बताइए। मेरा लाहौर ही है। और अब्बा जी का? मेरे फादर भी लाहौर के हैं। माशाल्लाह, इसकी लाहौर की खूबी तो फिर लाहौर है। लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे बात हो सकती है? बात हो सकती है आपसे? जी जी। आपका नाम क्या है, आपका शहर या गांव कौन सा और उसकी खूबी क्या है? आई एम फ्रॉम सियालकोट और मेरे शहर की खूबी वहाँ की स्पोर्ट्स की आइटम्स सियालकोट से। सियालकोट में इलामा इकबाल सरकार को भूल गया आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोला, मुझे अच्छा। याद है। हाँ, आप मुझसे खूबियाँ पूछे थे, मैं भी गिना रहा था आपको। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, अपने शहर या गांव का नाम और एक खूबी। सर जो मेरा गांव है वो झेलम है, ठीक है। उसकी खूबी ये है कि जो पाकिस्तान की जो पहली तो ये ना बल्टून वहाँ से पाकिस्तान आर्मी की पैदावार वो झेलम से हुई है। और एक अरे कदीमी शहर है वो शहीदों का शहर है। शहीदों का शहर, जवानों का शहर। मेरा फख्र है कि हम झेलम से बिलोंग रखते हैं। मेरा झेलम। थैंक यू। सर आपसे बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसन। हसन, आप अपने शहर या गांव का नाम बताएं और उसकी खूबी बताएं। शहर तो लाहौर। अब्बा जी का? सरगोदा। सरगोदा से। सरगोदा का तो खूबसूरती सर किन्नू शाहीनों का शहर जी। इनके डैडी का ताल्लुक सरगोदा से, लेकिन ये लाहौर की जमपल हैं। और कहा ये जाता है लाहौर ये एड्रेस गलत बताते हैं, क्या ये सही है? नहीं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं। अच्छा, आपको लगता नहीं वो जानते नहीं होंगे क्योंकि आप किसी को गलत एड्रेस बताएंगे? नहीं बताते नहीं है तो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैंने अभी आपके सामने कुछ लोगों से बात की। सर आप मुझसे बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम उमैर। उमैर, अपने शहर या गांव का नाम और उसकी खूबी बताइए। सर शहर भी लाहौर है और गांव भी लाहौरी है। हाँ जी, लाहौर लाहौरी है, जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया और जमे ही नहीं। दोस्तों अभी आपने देखा कि मिला जुला तासुर आया है, लोग लाहौर से भी हैं, लेकिन अगर मैं तनासुब निकालूं अभी जिन लोगों से बात की तो ये वही 60-70% का तनासुब बनता है कि जो लोग बाहर से आए और वो यहाँ सेटल हो गए। तो इसका सिर्फ कहने का मकसद मेरा ये सर्वे का, मैंने इसलिए कट नहीं किया अभी तक, ये था कि मैं ये गलत फहमी दूर कर सकूं। दोस्तों लाहौर के अंदर कम अज़ कम जो 70% लोग हैं वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आए हैं। मेरे वो अजीज़ व अकारिब जो
किसी गांव से या दूसरे शहरों से आए और वो यहाँ आकर सेटल हो गए। तो जो लोकल लाहौरिया है वो मेरा ख्याल है शायद 20-25 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। तो दोस्तों 5th जनरेशन वार का दौर है। इसका मकसद ये है, मैं हमेशा इस पर बात करता हूँ कि लोगों में मुनाफरत फैलाई जाए, किसी कौम के लोगों को गलत बात बता के गलत प्रोपोगंडा करके उनके अंदर नफसा नफसी मुनाफरत नफ़रत पैदा की जाए, तासुब पैदा किया जाए ताकि वो कौम तरक्की ना कर सके। और पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हो रहा है। एक वाक़या होता है, एक आईडी कोई दुबई से चलती है, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से जहाँ जहाँ बनी हुई, और उनके ऊपर ऐसा शरंगेज़ मवाद शेयर होना शुरू हो जाता है जिसके बाद हमारे अंदर इश्तिहाल पैदा होता है और हम ज़हनी दबाव का और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों पहली जंग जो है वो पत्थरों से और हाथी दांतों से और हाथों से लड़ी गई थी। 2nd जनरेशन वॉर जब हुई तो वो थी तीर और भाले बन चुके थे, और 3री जनरेशन के अंदर जहाज़ और बारूद आ चुके थे। 4थी जो जनरेशन वॉर है उसके अंदर आपने मिज़ाइल इस्तेमाल किए, जहाज़ इस्तेमाल किए, सुपरसोनिक तैयारे आ गए। लेकिन अब जब से दुनिया में आइटम बम ईजाद हुआ है तो उसके बाद आइटम बम के बाद अब 5th जनरेशन वार का दौर है, और इस वार के अंदर सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं जो मुनाफरत पैदा करती हैं, नफ़रत पैदा करती हैं ताकि कोई मुल्क तरक्की ना कर सके। तो 5th जनरेशन वार के इस अफरीद से, इस शैतान से और इस शैतानी प्रोपोगंडा से अपने आप को दूर रखिए। दोस्तों शहरदार कहीं का भी हो, सिर्फ लाहौर का नहीं, कराची का हो, कहीं का हो, ये बड़े गयूर लोग होते हैं, बड़े मोहब्बत वाले होते हैं और बड़े अंसार तबीयत होते हैं। अपने पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए और इसको शहरों में और इलाकों में और सूबों में मत बांटिए। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे एक हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है। और आज के बाद हम तहैया करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी शहर के किसी रहने वाले को या किसी शहर के बारे में कभी कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यही एकता है, यही यकजहती है, यही प्रॉस्पेरिटी है और यही यकजहती पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। मेरा पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे पूरे पाकिस्तान के रहने वाले अजीज़ व अकारिब जिंदाबाद। अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।